why do you think Finland is the happiest country in the world? I think it's because everything works here and we are quite content. Well, why wouldn't you be happy in Finland? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आपका मेरे चैनल भारत का प्रतीक में स्वागत है। मैं फ़िनलैंड में पिछले 4 सालों से रह रहा हूँ। मैं पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और इस चैनल को बनाने का कारण दोस्तों आप सभी को फ़िनलैंड के बारे में गहराई से बताना है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की प्रकृति कैसी है। मुझसे मेरे कई सारे रिश्तेदारों ने, कई सारे मित्रों ने कई बार मुझसे ये कहा कि भाई आप यहाँ पे 4 सालों से रह रहे हो, आप फ़िनलैंड के बारे में कुछ बनाते क्यों नहीं हो, कुछ दिखाते क्यों नहीं हो। तो मैंने सोचा चलो कोशिश करते हैं। और ख़ासकर पिछले 2 महीनों में एक ऐसी न्यूज़ आई जिसके कारण मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे काफ़ी पुश किया। जो न्यूज़ थी कि फ़िनलैंड जो है लगातार चौथी बार विश्व का सबसे खुशहाल देश का जो पुरस्कार है वो जीत चुका है। तो इन सभी ने मुझसे कहा, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, कि भाई ऐसा क्यों है ऐसा कि फ़िनलैंड लगातार 4 बार जीता है इस खिताब को। तो मुझे लगा कि इसके लिए एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को, भारतवासियों को ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि, और मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा मुझे क्यों लगता है कि ये चीज़ सही है कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल होंगे दुनिया में। मगर मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करूँ, क्यों ना हम कुछ फ़िनलैंड के जो लोकल लोग रहने वाले हैं, जो यहाँ के बचपन से जो लोग यहाँ रहते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या वो भी ऐसा सोचते हैं कि वाकई में फ़िनलैंड सबसे खुशहाल देश है, क्या वो लोग वाकई में खुश हैं यहाँ पे। तो आइए पहले उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानना है। Anteeksi. Joo. Mikä sun nimesi on? Perttu Louhesta. Miksi Suomi on maailman onnellisen maa 4 kertaa peräkkäin? Joo. Ja voisitko sä sanoa oma mielipiteesi, miksi tämä on? Voin sanoa. Suomessa on tosi hyvä ilmainen ja julkinen terveydenhuolto. Jos sulla tulee jotain ongelmia, niin ei tarjolla niin paljon rahaa, että voi hoitaa itsensä. Sitten täällä on sananvapaus, uskonnonvapaus. Sä voit olla sellainen kuin sä haluat. Voit ilmaista mielipiteesi ja voit uskoa. Sua ei sitten vainota eikä syrjitä. Suomi on tosi tasa-arvoinen maa. Täällä on miehet ja naiset aika lailla tasa-arvoisia. As a Swede living in Finland, I think the reason why Finland is the happiest country in the world is because you have a really good social security and good infrastructure. Equality between genders is not perfect, but it's good. And it's also very homogenic, small population. Hello, my name is Maria Koivusalo. So Maria, why do you think Finland is the happiest country in the world? I think it's because everything works here and we are quite content about that. We don't need so much richness or plenty of things. We are content what we have. That's, I think, why we are happiest. So Ville, tell me, why do you think Finland has been rated 4 times the best, happiest country in the world? Well, why wouldn't you be happy in Finland? We have a really good system here behind us. Everybody can be themselves. And if you want to make whatever in your life, you're able to do it. You have if it goes bad, you have a good health system. If it goes really good, the taxation is not that bad. Jos olet tosi köyhä, niin sä saat tukea, valtiotukea antaa tukea. Ja koulutus on ilmaista. Täällä on hyvä koulutus ja luonto on puhdasta ja kaunista. Täällä saa vapaasti liikkua ja nauttia luonnosta ja harrastaa erilaisia juttuja. Voi tuntea, että on asioita, joita voi tehdä ja on turvallista, ei ole sotia. Well, good school education system is really good. It's the best in the world. Yeah, and it's also free from nature's like disasters. It's safe.
there's only 6 million people in Finland, so we're a really small country that has enough time for all the persons here. So I think that makes this kind of social atmosphere where everybody is accepted and they have still ability to be themselves, and that's really good about it. We have good democracy here, no war, we obey law, and we trust our politicians and they trust us. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना अभी यहाँ के लोगों से कि अच्छी चिकित्सा का होना, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना, शिक्षा का फ्री होना, अभिव्यक्ति की आज़ादी होना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे कारण ऐसे हैं जो एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसके कारण वाकई में यहाँ लोग खुश रहते हैं। अब मैं दोस्तों अपना कुछ अनुभव आपसे शेयर करूँगा कि मैंने ऐसा क्या गौर किया यहाँ पे कि ये बातें वाकई में सच हैं। तो उन सभी में से जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे वाकई में लोग संतुष्ट बहुत रहते हैं। जैसा कि मारिया ने कहा कि यहाँ पे लोग वाकई में बहुत संतुष्ट रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, शिकायत नहीं करते। अगर कोई काम बिगड़ जाता है तो उसको ठीक करने में लग जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लोग नेवर गिव अप एटीट्यूड है कि हार नहीं मानते। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो प्रयास करते रहेंगे, लेकिन हार नहीं मानते, जल्दी शिकायत नहीं करते। ऐसे ही यहाँ पे लोगों के मन में जलन की भावना, द्वेष की भावना नहीं है, यानी जेलसी और हेट्रेड जो है वो एक दूसरे के प्रति बहुत कम है या बिल्कुल है ही नहीं। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति ने किसी नए काम को स्टार्ट किया है तो लोग उसका समर्थन करते हैं, किसी ने सक्सेस हासिल कर ली है तो लोग उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। अमीरी गरीबी में कोई फ़र्क नहीं है, अमीर गरीब का दोस्त हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे ईमानदारी बहुत 100% कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी ईमानदारी। यहाँ पे जो लेवल है ईमानदारी का वो ऐसा है कि अगर आप अपना बटुआ यानी कि अपना वॉलेट आप कहीं पे छूट गया है, आपका कहीं पे आपका फ़ोन छूट गया है, अगर मान लेते हैं बस स्टॉप पे, तो आप अगर वहाँ वापस भी जाएंगे तो जैसा रखा था वहाँ पे वैसा ही मिलेगा आपको। आपका घर का दरवाज़ा खुला छूट जाता है तो ऐसा नहीं है कि कोई घर में घुस जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है यहाँ पे समानता होना। जैसे कि यहाँ पे जातिवाद नहीं है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, लिंगों में समानता है। यहाँ पे गोरे और काले का कोई रेसिज्म नहीं है, इस टाइप का किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होता इन सारी चीज़ों का। ये नहीं है कि अगर कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, उसको वीआईपी सुविधा मिलेगी। जो सुविधाएं एक गरीब को मिलती हैं यहाँ पे, वही सुविधाएं एक चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो उसका भी चिकित्सा वैसे ही होगा चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में, जैसा कि एक गरीब का होता है यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बात करते हैं अगर लिंगों की कि पुरुष और महिलाएं, तो उनको एक समान अधिकार है, चाहे किसी भी चीज़ में देख लीजिए। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो मैं आपको बताऊं तो वो है कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो 35 वर्षीय महिला हैं जिनका नाम सन्ना मरीन है। और दोस्तों, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है कि 35 वर्षीय सबसे कम उम्र की महिला किसी भी देश की प्रधानमंत्री, ये पहली बार फिनलैंड ने करके दिखाया। और यही नहीं, अगर आपको मैं उनका मंत्रिमंडल बताऊं, जिसे कहते हैं कैबिनेट, तो उनका जो मंत्रिमंडल है उसमें भी 50% से ऊपर जो मंत्री हैं वो सारी की सारी महिलाएं हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है यहाँ पे सुरक्षा मिलना। सुरक्षा कोई ऐसी वैसी नहीं, यहाँ पे सुरक्षा का कुछ डेफिनेशन दूसरा ही है। जनरली सुरक्षा जैसे ही दिमाग में आती है नागरिकों के लिए, तो सुरक्षा का मतलब होता है कि सुरक्षा बल का होना सीमाओं पे और पुलिस का होना चौकियों पे। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा का मतलब सरकार ने कुछ और ही बना रखा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि मान लेते हैं एक बच्चे का जन्म हुआ एक गरीब परिवार में, तो अब उसका खाने पीने का, रहने सहने का खर्चा कौन देखेगा? दवाइयों का खर्चा, किताबों का खर्चा, तो सरकार ने इसके लिए इंतज़ाम कर रखा है। सारा का सारा पैसा सरकार देती है उस बच्चे के लिए माँ बाप को, ताकि माँ बाप के ऊपर इसका बोझ ना आए। बच्चे की शिक्षा पूरी फ्री है तो आपको पैसा देना ही नहीं है। इनफैक्ट बच्चा जब बड़ा हो जाता है और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो सरकार उसको मंथली पेमेंट देती है, खुद पैसा देती है सरकार उसको, उसके खर्चे के लिए, कि वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकता है, मूवी देखने जा सकता है। ये करीब रकम 20-22 हज़ार रुपये होती है भारतीय करेंसी में। साथ में उसको रहने के लिए फ्लैट देती है ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सके। इसके अलावा जब तक चाहे तब तक पढ़ाई कर सकता है बच्चा। अगर मान लेते हैं पढ़ाई पूरी हो गई तो अब क्या, अब आती है रोज़गार की बारी। तो उसके लिए उसको रोज़गार विभाग में जाना होगा, अपने आप को रजिस्टर करना होगा, और जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती
तब तक उसको बेरोज़गार भत्ता मिलता है। और दोस्तों आपको जान के शायद हैरानी होगी, वो बेरोज़गार भत्ता छोटा मोटा नहीं होता, वो भारतीय करेंसी में करीब 1.25 लाख रुपए से आसपास होता है या इससे ऊपर भी होता होगा। जब तक उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक सरकार उसको इतना पैसा, या जो रोज़गार विभाग है उसको इतना पैसा देती रहेगी, और वो चाहे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस को छोड़ के दोबारा से पढ़ाई करने जा सकता है। अब आते हैं इसके बाद अगली सुरक्षा की, कि मान लेते हैं भाई बीमार हो गए, किसी तरीके का ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, तब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इलाज है वो बहुत ही उचित दामों पे है, तो ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। दवाइयाँ भी बहुत ही उचित दामों पे मिलती हैं, और ज़्यादातर जो यहाँ पे इलाज होता है वो सारा का सारा सरकारी अस्पतालों में होता है। यहाँ पे प्राइवेट अस्पतालों का इतना महत्व नहीं है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपका जो मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट होगा, इलाज होगा, वो सारा का सारा आपका अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें होगा। सब चीज़ों में एक चीज़ जो ऐड करता हूँ मैं, वो है यहाँ पे रहने का अधिकार। जैसे कि राइट टू वोट होता है, वैसे यहाँ पे राइट टू हाउस है, या राइट टू रेसिडेंस जिसे बोलेंगे, कि यहाँ पे सबको घर में रहने का अधिकार है। अगर आपके पास में घर नहीं है, कोई बात हो गई, आपका घर आपसे छीन गया, आपके ऊपर डेट थी, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सरकार ने यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आपको ये घर मुहैया कराया जाएगा किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों यही सारे कारण मिलके मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक वातावरण, एटमॉस्फेयर बनाते हैं जिसके कारण वाकई में लोग यहाँ पे खुश रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। आप मेरे चैनल भारत का प्रतीक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों कमेंट में ये आप बता सकते हैं कि यहाँ के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर भी एक नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।